Okay, so in the last class, we did uniform circular motion and we also derived some formulas related with it. Now, just to get it revised, we have displacement, that is delta x linear displacement, that is final position minus initial position. Similarly, we have in circular motion, we have angular displacement. Okay, that is delta theta. So theta final minus theta initial. And if suppose you are starting from your theta initial is 0 degree, so you are assuming this is theta final. So this angle you are assuming as theta. So angular displacement is theta. Okay. So angular displacement is equals to theta if theta is 0. So then it is theta. Now another thing, this is theta, this length, this radius, this length of arc. So theta in terms of radian is also equals to L by R. Okay. Length of the arc divided by radius. So that is theta. This theta is in terms of radians. Now we have, so this was the first concept, angular displacement. Then we have second concept, angular velocity. Angular velocity is omega. Okay. And angular velocity, like we have linear velocity, this is even average velocity. Its magnitude is given by magnitude of displacement divided by time taken. So same here, omega is equals to del. So this also average delta theta by delta t. Okay. If you want to write instantaneous angular velocity, then that will be d theta by dt. You are taking very, very small time. So very, very small. Here also instantaneous velocity is dx by dt. Now we discussed how this angular velocity can be written as angular frequency. Right? So how can we write this angular velocity as angular frequency? See, angular frequency is also omega, so we have to write this omega in terms of frequency. See, if for one revolution, what will be omega equals to delta theta is one revolution 2 pi radian, and time taken is time period capital T, and 1 by T is frequency, so that's omega. And because we have written here this omega is equals to 2 pi f in terms of frequency, that is why we call the omega here as angular frequency. And if we are writing it in terms of rate of change of angular displacement, then it is angular velocity. We also write f, we also write 2 pi f or nu. Two symbols are used for frequency. Now we have relation between v and omega and linear velocity. This is your linear velocity. V is equals to omega r.
right? And we know that we did that V is equals to omega cross R. That's the cross product, and here the theta is 90 degree. So this cross product V is equal, the magnitude is written given as omega into R into sine theta. And theta is 90. So sine 90 is 1 and V is equals to omega. Then we did the, now we did velocity, now comes acceleration. So we did centripetal acceleration. AC is equals to V square by R, and V is equals to omega R. So we can further write in terms of angular velocity also. So this is in terms of centripetal acceleration in terms of V, and so put the value of, so this will be omega square R square by R. So 1 R will cancel out. And we get AC is equals to omega square R. So that's the relation for centripetal acceleration in terms of, so this was the relation in terms of linear velocity, this is the relation in terms of angular velocity. Now we have the formula for linear acceleration. So from this formula, so dv by dt is equals to, so means differentiating both sides with respect to t, r is constant, will come out, and this is d omega by dt. Okay, so v dv by dt is acceleration, linear acceleration, and that is equals to r into d omega by dt is angular acceleration. So that's the relation between linear acceleration and so this is linear acceleration and this is angular acceleration. So now can you tell me, the students, what will be the units of theta? What are the units of theta, students? Is it in degree or radians? Sir, radians. Very good. So what will be the units of, okay, what is the units of velocity, linear velocity? Meter per second. What is the units of angular velocity? Sir, radian per second. Very good. Radians per second. Very good. What are the units of this centripetal acceleration or acceleration? Meter per second square. Meter per second square. What are the units of angular acceleration? Radian per second square. Very good. Radian per second square. Very good, students. That's absolutely correct. Now let us do some simple questions based on these formulas. First question is, you have to tell the, so there is a flywheel and this flywheel is making revolutions, 420 revolutions on its axis. It is making 420 revolutions in 1 minute. Okay, yeah, 420 revolutions per minute. So what is the frequency? What is the angular? Okay, tell me, what is angular speed or angular or magnitude of angular velocity? Angular speed is nothing but, yes, what will the angular speed? So we know the formula. So how many revolutions per minute? 420. So
we can, so angular speed means magnitude of angular velocity omega. So what will the formula in terms of, this is frequency resolutions per second is actually, this 60 minute is 1 minute is 60 seconds. तो हमें निकालना है कि 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस हुए स्टूडेंट्स. तो 420 रेवोल्यूशंस इन 60 सेकेंड्स. तो वन सेकंड में कितने होंगे, तो किससे डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, 60 से. तो क्या आ जाएगा 420 डिवाइडेड बाय 60, यूनिट्स वही रहेंगी, revolutions in 1 second, and 6 7 the 42. So that's your frequency, that's what we call a frequency, f or nu. So what is the frequency here students? In 1 second 7 revolutions, so 7 hertz, right? And we have just written the formula for omega. Yes, omega is equals to, फटाफट कर लेते हैं, नहीं ध्यान है तो डिराइव कर लो 1 सेकंड में, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और डेल्टा 1 रेवोल्यूशन के लिए लिख लो 2 पाई रेडियन अपॉन टाइम पीरियड टी, एंड 1 बाय टी इज फ्रीक्वेंसी. तो क्या आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. तो कितना आ गया ओमेगा आपका, 2 पाई इंटू 7, राइट. सो दैट इज 2 into 22 by 7 into 7, so 7 से 7 cancel, that is 44. What are the units students? 44. yes, अभी बताया था आपने यूनिट्स एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर रेडियन पर सेकंड. वेरी गुड, रेडियंस पर सेकंड. कर लो स्टूडेंट्स, लिख लो क्वेश्चन ये, गॉट द पॉइंट. So frequency is number of revolutions in 1 second. So number of revolutions divided by time taken, that is your frequency. तो क्या फॉर्मूला बना आपका फ्रीक्वेंसी का, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. और आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर्मूला नहीं है आप तो बस 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस हैं, ठीक है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी. गॉट इट स्टूडेंट्स. डन सर. और टाइम पीरियड कितना आएगा इसका, टाइम पीरियड इज हाउ मच टाइम आपके हैं 7 रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड. टाइम पीरियड क्या होता है, 1 रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगा, तो 1 रेवोल्यूशन में निकालने के लिए आप किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से दोनों तरफ. तो यहां तो क्या आ जाएगा 1 रेवोल्यूशन इन 1/7 सेकेंड्स. तो 1/7 सेकेंड इज योर टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड क्या आ गया 1/7 सेकेंड्स. आ गई बात समझ में ये. यस सर. तो स्टूडेंट्स हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें, सिंपल सिंपल रिलेशंस आप ड्राइव भी कर सकते हैं. 1-2 बार करेंगे तो हो जाएगा याद, कोई इशू नहीं है, ठीक है. डन. Shall I take Yes, sir. one more question? ले ले क्वेश्चन, ले ले एक और. स्टूडेंट्स आपके लिए ये वीडियो स्पेशली एक बार और मतलब देखना बनता है, अदरवाइज सैटरडे संडे हो तब एफर्ट्स करो, इस वीक के सारे वीडियोस देखो, दोबारा रिवाइज करो. नए कंसेप्ट आपके लिए. ए बॉडी, लेकिन इजी है, इजी है मुश्किल है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी है. ए बॉडी ऑफ मास 10 kg रिवॉल्व्स इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर, ये आपका एक सर्कल है, और स्टूडेंट्स आपको इसका रेडियस दे रखा है 0.2 मीटर्स. ओके, और that's the body of mass 10 kg. It is revolving in a circle and it is making 100,000 revolutions
इन 1 मिनट। ओके, तो 1000 रेवोल्यूशंस पर मिनट भी आप बोल सकते हो, या 1000 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, एक ही बात है। हमें क्या निकालना है इसका, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन एक ही बात है, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, भाई v निकालना है, v का रिलेशन ये आपको दे रखा है क्या, फ्रीक्वेंसी होती है ना रेवोल्यूशंस पर मिनट। अभी ऊपर तो किया था आपने, बताना मुझे कितना आई आपकी फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन आए, अगर 60 सेकंड्स में 1000 है, 1000/60. वेरी गुड। तो 1000/60 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, दोनों तरफ 60 डिवाइड कर दो, तो कितना आया आपका, ये आए 50/3। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 50/3 हर्ट्स, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप रिलेशन आपको पता है, v इज इक्वल्स टू, क्या रिलेशन है, ओमेगा आर, है ना। Yes, sir. तो आप यहां v पता है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था, हम ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf, अभी पिछले क्वेश्चन में यही तो किया। तो क्या आ जाएगा, 2π इंटू 50/3। तो कितना आ गया एंगुलर स्पीड, कितनी आ गई आपकी एंगुलर स्पीड, था 100π/3 यूनिट्स। यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, अभी लिखी थी आपने, क्या यूनिट्स आई, Sir, radian/second. रेडियंस पर सेकंड, वेरी गुड। अब एंगुलर स्पीड आपको पता है, रेडियस आपको पता है 0.2, तो v निकाल सकते हो आप। तो v कितना आ जाएगा, ओमेगा आर, दैट इज ओमेगा इज 100π/3 इंटू r is your 0.2 meters। तो कितना आ गया आपका, 0.2 इससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 20π/3 यूनिट। स्टूडेंट्स क्या यूनिट्स आएंगी, अरे लीनियर स्पीड की क्या यूनिट होती है, Sir, radian/second. लीनियर है बेटा ना, लीनियर स्पीड, meter/second. वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, अच्छा आपके पास जो फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v²/r, और एक फॉर्मूला आपने लिखा लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, जैसे ये था v का डिफरेंशिएट करोगे इस तरफ तो ये आ जाएगा, इस तरफ डिफरेंशिएट करोगे r, ऐसे कैसे ओमेगा का डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू, और एक तो यहां से आप दैट इज आर अल्फा, वो तो एक अलग फार्मूला हो गया, लेकिन आपने यहां पर ये v की वैल्यू पुट कर दी, तो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा भी निकाल सकते हो आप, वो तो एक ही बात है। v की वैल्यू ओमेगा r पुट की थी ना आपने, तो एक r से एक r कट जाएगा, यहाँ कैपिटल R, दोनों तरफ सेम r दे लो, स्मॉल रेडियस है ये r। इवन यहाँ पर ये आपको बताया था पोजीशन है, लेकिन वो एक्सिस से पार्टिकल की, लेकिन वो रेडियस के इक्वल है, और यहाँ पे रेडियस आई, तो ओमेगा²r² दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा²r, r से r कट गया, तो एक फार्मूला ये। तो आपको यहाँ पे AC निकालना है, आपको पता है दैट इज v²/, तो सीधा पुट करो, v आपको पता है, v की वैल्यू निकल गई कितना, 20/3π डिवाइडेड बाय r इज 0.2, तो कितना हो जाएगा ये, तो 1/0.2 हो जाएगा, तो 20π/3 इंटू 0.2, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स ये,
इज इक्वल्स टू, डेसिमल हटेगा तो ये, सर 100 पाई बाय यस 100 पाई बाय 3। हम्म स्टूडेंट्स v का स्क्वायर करना था आपको, तो इसका स्क्वायर होगा और 3 का भी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और यहां आएगा आपका कितना, 2000 आ जाएगा ना यहाँ, 2000 पाई बेटा यही आएगा ना भाई, 20 पाई यस इंटू 20 पाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.2 करके देख लो। ये डेसिमल हटाओगे तो 10 आ जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया, एक 2 से एक 2 कट गया, तो 2000 पाई स्क्वायर अपॉन 9। यूनिट्स क्या है स्टूडेंट्स इसकी, सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। ये अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, अल्फा कितना आएगा इस केस में, अल्फा इज इक्वल्स टू ए बाय आर। एंगुलर एक्सेलरेशन ए कितना आपका, अभी निकाला आपने ए, सर 2000 पाई स्क्वायर बाय 9। और डिवाइडेड बाय आर कितना है 0 पॉइंट, 0. तो पॉइंट हटा के 10 और एक 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया आपका अल्फा इज इक्वल्स टू, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई 1 और कितने 0, 4 0 पाई स्क्वायर बाय 9। क्या यूनिट्स होंगी स्टूडेंट्स इसकी, सर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। डन। ओके स्टूडेंट्स। ओके सर। देखो आप जो है एक यूनिट्स बहुत फेमस देखते होगे, जब भी इंजन्स की बात की जाती है ना, कार का इंजन है ना, तो उसकी जो यूनिट्स होती हैं, जो रेवोल्यूशन उसमें दिया होता है, उसकी यूनिट्स होती हैं आरपीएम। क्या होती हैं, आरपीएम। तो आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होगी, रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो नॉर्मली जो डे टू डे लैंग्वेज में चलता है हमारा, जैसे मैंने बताया, तो मोटर्स जो हैं उनका आरपीएम होता है, क्या होता है मोटर्स का आरपीएम, कि भाई 1 मिनट में कितने चक्कर काटती हो, ठीक है, मतलब कितने रेवोल्यूशंस। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। चलो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ओके, नोट डाउन हो गया ये, यस सर। चलो ये आप पहले ही कर चुके, इसमें कुछ नया नहीं है। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, दो चीजें हैं, अगर आपको ये वेक्टर ए दे रखा है और ये है वेक्टर, सपोज ये एक्स डायरेक्शन में है तो ये ए एक्स हो गया, वाई डायरेक्शन में तो ए वाई, मैं क्या, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड कर दो। तो कैसे ऐड करोगे आप, पैरेललोग्राम लॉ से, ज्वाइन देम बाय टेल्स। कैसे ज्वाइन कर रखा है, ज्वाइन बाय टेल्स। तो जो डायगोनल आएगा आपका पैरेललोग्राम का, ये क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट, यानी कि ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड है ए वाई, ये मैग्नीट्यूड है ए एक्स, और ये जो मैग्नीट्यूड है
ये है, जो भी आएगा ये मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड आपको पता है ना कैसे निकालते हैं? हाँ, इन Yes, दो sir. ए एक्स और ए वाई के बीच में एंगल थीटा, ध्यान है कुछ? तो ये था हमारा वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी, और इनके बीच में एंगल था थीटा, तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट ए प्लस बी। लेकिन इस ए प्लस बी की लेंथ कितनी होगी? दिस इज योर रिजल्टेंट। तो लेंथ ऑफ दिस वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर की जो लेंथ है, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, डेट इज अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद आया कुछ? Yes, sir. तो cos 90 क्या हो जाता है? 0। तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाती है अगर थीटा 90 डिग्री है, जैसे इस केस में थीटा 90 है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? ये वाली टर्म खत्म। और आर किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी कि ये जो ए एक्स और ए वाई है ना, लेंथ यही होगी ना इसकी। Yes, sir. तो दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू, भाई ये ए एक्स ये ए वाई, तो ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। तो दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ये इसकी लेंथ आ गई। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सा कंसेप्ट है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आप इसको रिवर्स कर दो, यानी कि अब मैं आपको दे दूं, आप ए एक्स प्लस ए वाई को वेक्टर ए लिख दो। समझ गए? अब मैंने आपको ए दे दिया है। क्या दे दिया है? ए। ओके, ये तो क्या था? एडिशन। एडिशन में मैंने क्या गिवन दिया आपको? ए एक्स एंड ए वाई। तो आपने उनको ऐड करके और आपने वेक्टर ए निकाल दिया। अब मैं आपको क्या दे रहा हूं स्टूडेंट्स? इसका उल्टा। आई एम गिविंग यू ए। ओके, तो फर्स्ट कंसेप्ट हो गया आपका एडिशन। सेकंड, रिजॉल्विंग द वेक्टर। रिजॉल्विंग, RESOLVING, रिजॉल्विंग ए वेक्टर। ये क्या था? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यहां वेक्टर्स की एडिशन थी। ये रेजोल्यूशन, ये रिजॉल्विंग ए वेक्टर है। तो ये आपको एक वेक्टर गिवन है स्टूडेंट्स ए, बिल्कुल सेम। तो इसका क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑफ एडिशन। रिवर्स ऑफ एडिशन है ना? कैसे? जैसे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हो ना, तो जब आपको सिंप्लीफाई करना होता है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। सपोज मैंने ये क्या दिया और मैं कहा भाई सिंप्लीफाई, तो आप क्या करोगे? इसका क्या लिख दोगे? एक्स स्क्वायर 3x और 2x प्लस x माइनस 6। ये हो गया आपका सिंप्लीफाई। अब मैं कहूं फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन में आप क्या करोगे? आपको मिडिल टर्म को फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा। तो इसमें अब क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने ये, तो आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। तो फिर यहां से आप x में से ये कॉमन निकालोगे, इधर -2 कॉमन निकालिए, x प्लस 3, और ये फैक्टर आ गया आपका x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहां जो आपने ये स्टेप किया, ये इसका जस्ट रिवर्स है। तो जैसे सिंप्लीफाई फैक्टराइजेशन में फर्क है, वही यहां पर है। सिंप्लीफाई यानी कि ऐड, और रिजॉल्विंग यानी कि अब आपको ये वेक्टर x गिवन है और x से वापस ये लिखना आपको। इज दिस क्लियर? यानी कि आपको मैंने क्या दे दिया? डायगोनल दे दिया। क्या दे दिया? Diagonal. ऑफ रेक्टेंगल। किसका डायगोनल दे दिया? रेक्टेंगल का। तो आप बताओ इसकी साइड्स ड्रॉ करो। तो एक तो साइड ये हो गई इसकी, कर लो इस ट्रायंगल को, इसको रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लिया ना। अब जो एक्स एक्स Yes. अब जो एक्स एक्सिस है ये, तो एक्स एक्सिस की तरफ जो लेंथ है वो ए एक्स हो गई। जो वाई एक्सिस की तरफ लेंथ है वो क्या हो गई? AY. ए वाई। बस सिंपल। इज दिस क्लियर? अब ए एक्स, अब ये क्या है? ये भी ए वाई है लेंथ, और ये एंगल कितना है? थीटा। तो ए एक्स किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स?
भाई ओपन एडम ओपन हरी हरी एडम साइन कॉस टेन, तो ये कौन साइड है, ए एक्स, एडजेसेंट साइड होगी ना थीटा के, तो ये एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है आपकी ए, तो क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ए वाई किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, सर ए sin थीटा। बस बन गई बात तुम्हारी। तो आपने वेक्टर्स को क्या कर दिया, रिजोल्व कर दिया, इसका एक्स कंपोनेंट है ए कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट है ए साइन थीटा। आप दोबारा से आप इसको वापस करके देखो, सपोज आपको ए एक्स ए वाई दे रखा है, तो वापस ए आएगा नहीं आएगा, करके देखो, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और इसका अंडर द रूट, करके देखो, तो क्या हो गया, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर आप कॉमन निकाल लो, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1, तो ए आ गया ना भाई, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो ए आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, अंडर द रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो किसके इक्वल होता है, 1 के, तो अंडर द रूट 1 के इक्वल हो गया। तो स्टूडेंट्स आप इस बात को ऐसे घुमा लो या ऐसे घुमा लो, कोई डिफरेंस है क्या दोनों में, नो सर। और आपको वेक्टर ए लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताना मुझे, ए एक्स, और अब इधर वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर होना चाहिए ना, तो मैग्नीट्यूड और फिर उसकी डायरेक्शन, कि भी एक्स एक्सिस में ये यूनिट वेक्टर हो गया आई कैप, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन प्लस ए वाई, ये मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस, तो जे कैप, तो वेक्टर इज इक्वल टू, ये भी वेक्टर है और ये वेक्टर, वेक्टर कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। सर मुझे ये बात समझ आ गई, यस सर मुझे वेक्टर ए बताओ कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो आप मान लो ये जो डायरेक्शन है इसको आप मान लो एन कैप, ये डायरेक्शन ना आई है ना, तो आप एन कैप भी मान सकते हो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया ए, और इस डायरेक्शन में 1 यूनिट चले आप, तो जो वेक्टर बना वो क्या है एन कैप, तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में, तो किसी वेक्टर को लिखना स्टूडेंट्स यही तरीका है, आगे बात समझ में, यस सर। तो उसके मैग्नीट्यूड को उससे, तो यहां पर हमने इसको लिख दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, ओके, तो ये हो गया अपना रिजॉल्विंग द वेक्टर। और अब आप इधर अगर मान लो इसी के अंदर आप ए लिखा आपने, तो ए को आप अब ए एक्स की वैल्यू लिख दो यहां और ए वाई की वैल्यू लिख दो, तो क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। अरे हाँ या ना, एक ही तो बात है, एक ही बात है, ये बार बार गोल गोल घुमाते रहो उधर उधर से, ठीक है, ओके। यस सर। तो आप जो है ये जो लेंथ थी, सपोज आपका था ये ए ओ, ये था बी और ये था सी, तो ओ ए वेक्टर किसके इक्वल हो गया था आपका, ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो इसी को, आगे बात समझ में, ये जो Yes, वेक्टर ए है इसी को आप कैसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन अलोंग ओ ए, ऐसे लिख दो, एक ही बात है, डायरेक्शन या तो यूनिट वेक्टर से लिख दो या फिर क्या लिख दो अलोंग ओ ए, वो भी ठीक है। तो देखा आपने वेक्टर को लिखने के, ए को ही लिखने के कितने ढंग बता दिए, पहला दूसरा, ये तो इन टर्म्स ऑफ ए के मैग्नीट्यूड, और ये इन टर्म्स ऑफ, तीसरा इन टर्म्स ऑफ ए एक्स ए वाई, और ये चौथा इन टर्म्स ऑफ, बस ए एक्स की वैल्यू लिख दी, ए वाई की वैल्यू रख दी, यहां एन कैप को बता दिया अलोंग ओ ए। स्टूडेंट्स ये बात बनी नहीं बनी, यस सर। और ये आपका ए का मैग्नीट्यूड आ गया था अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अच्छा डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे, टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या है ए वाई, एडजेसेंट क्या है ए एक्स, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, वही चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, वही तो है टेन थीटा स्लोप ए वाई बाई एक्स, कुछ फर्क नहीं है इसमें,
डन। डन स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है आपका। हम्म, कर लो, नोट कर लो। Done, sir. ओके, गुड। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करो अब इसके ऊपर बेस्ड, तो थोड़ा पता लगेगा आपको। क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन इज फाइंड द मैग्नीट्यूड and direction of vector A, that is 3i cap plus 4j cap। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताने आपको इस वेक्टर की क्या है, यानी कि ये वेक्टर दे रखा आपको ए कैप। तो स्टूडेंट्स आप कितना इजी है आपके लिए, ये आपको सब बता रखा उसने। तो ये डायरेक्शन मतलब ये एंगल थीटा बताना आपको, जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग कितना यूनिट है ये वेक्टर? Sir, 3i cap. 3i कैप, यानी कि 3 मैग्नीट्यूड होगा इसका अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप तो ये यूनिट वेक्टर है यहाँ पर, ये है यूनिट वेक्टर, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड, और एक्स डायरेक्शन में ये 1 यूनिट मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम बोलेंगे आई कैप बस। जे कैप, ये जे कैप। तो सर ये 3i कैप प्लस 4j कैप कैसे बना? देखो भाई, ये ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई आई कैप ना, प्लस 4 मल्टीप्लाई जे कैप, यानी कि 3 बार चलो आप, ये हो गया ना 3 मल्टीप्लाई आई कैप, यानी कि आई कैप आई कैप आई कैप, कितनी बार? 3 बार। और ये सॉरी जे है, ये जे कैप कितनी बार स्टूडेंट्स? 4 times. 1 2 3 4। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मतलब 3i कैप का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 3। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 4। 4. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसका मतलब भाई 3 4 5, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बन गई क्या? Yes, sir. तो ये जो था ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, यही तो था। और आपने लिखा था ए इज इक्वल टू अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ऐसे निकाल लो। ए एक्स कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 125, डेट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आ गई बात? और डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स? अभी लिख रखे डायरेक्शन tan थीटा, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी? tan थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा मान लो, तो क्या होगा? अरे 4/3 नहीं हो जाए, क्या कर रहे हो बेटे? tan थीटा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, या ए वाई बाय ए एक्स। तो यहाँ पे आपका ए एक्स कितना है? 3, ए वाई कितना है? 4। प्रैक्टिकली समझ में आ गया? अब सर मैं यहां ये कैसे लिखूं इसको? तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, वेयर थीटा इज एंगल मेड बाय वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, क्वेश्चन में तो आपको थीटा दिया था ना, थीटा हमने खुद माना है, तो इसलिए हमें बताना पड़ेगा जो आपने थीटा आप आंसर में लिख रहे हो वो थीटा कौन सा है जो एक्स एक्सिस के साथ ए वेक्टर ए बना रहा है। तो ये यहां से डायरेक्शन पता लग गई, और ये आ गया उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हो गया? Yes, sir.
अब हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि अगर थ्री डायमेंशनल की अगर हम बात करें, एक डायमेंशन नहीं, थ्री डायमेंशनल, तो थ्री डायमेंशन में वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है डायरेक्शन कोसाइंस की, किसकी? डायरेक्शन कोसाइन। तो कॉस तो आपको पता ही है, कोसाइन जिसको आप शॉर्ट में कॉस लिखते हो, तो उसके आगे डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? देखो, इफ अल्फा इज द एंगल, ये जो एक आपका वेक्टर है ए, ठीक है, ये वेक्टर ए, तो ये जो वेक्टर ए है, ये आपने देखा, ये आपको जो दिखाई दे रहा है क्लियरली इस फिगर में, हम हर बार जो बनाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और एक एंगल बनाते हैं यहाँ थीटा, तो ये क्या आ जाता है आपका, ये लेंथ कितनी आ जाती है अलोंग एक्स एक्सिस? ए, अरे कॉस थीटा आती है ना, और अलोंग वाई एक्सिस कितनी आ जाती है? ए साइन साइन थीटा। आती है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मान लो ये आपका वेक्टर ए, ठीक है, ये क्या आपका वेक्टर ए, ओके, तो ये एक्स एक्स के साथ मान लो एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ यहां एंगल में बना नहीं पा रहा, लेकिन ये ऐसा कुछ बनेगा इधर, ऐसे मतलब इधर से ऊपर स्क्रीन के बाहर से आना पड़ेगा मेरे को ऐसे, तो ये आपकी तरफ बाहर है ना, ये बाहर की तरफ आ रहा है ना, ये जो z है इट इज कमिंग आउट ऑफ योर स्क्रीन परपेंडिकुलर टू स्क्रीन, ये जो z है ये इट इज कमिंग आउट, वाई एक्स प्लेन आपकी स्क्रीन हो गई, और z जो है इसके परपेंडिकुलर आप पेंसिल रख दो, तो ये z एक्सिस हो गई, और a जो है वो आप समझ लो कि z एक्सिस के साथ, तो a जो है इज मेकिंग एंगल अल्फा विद x एक्सिस, A is making angle beta with y axis, and vector A is making an angle gamma with z axis. Okay students, तो आप मुझे बताओ along x axis इसका कितनी लेंथ आ जाएगी इस वेक्टर की along x axis? A cos alpha. along y axis कितनी लेंथ आ जाएगी इसकी? सर ए साइन अल्फा। हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, ए साइन अल्फा। अब मैं बीटा की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो, क्योंकि यहां मैं बीटा दे दिया मैंने विद वाई एक्सिस, तो जो वाई एक्सिस साथ अब बताना, अगर बीटा दे तो बीटा के लिए कौन सा एंगल हो जाएगा? ये एडजेसेंट, तो क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बीटा? सर ए साइन बीटा। ए नहीं, साइन नहीं, एडजेसेंट एंगल, जैसे इसमें एडजेसेंट था तो एडजेसेंट, ओपन एडम, ओपन हरी हरी एडम, अगर साइन कॉस टेन, अगर एडजेसेंट है तो हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा ना बेटा, यहां यहां अपोजिट था अल्फा के, तो ए साइन अल्फा था, राइट, ये साइन अल्फा तो ये भी ए साइन अल्फा, लेकिन अब मैं बीटा की टर्म्स में लिखना हो तो क्या लिखूंगा? सर ए कॉस बीटा। वेरी गुड, ए कॉस बीटा। तो जो एंगल बना यहां पर, वो जो लेंथ बनी आपकी, वो क्या बनी? लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, ए कॉस अल्फा, ये एंगल अल्फा है तो ए कॉस अल्फा, और लेंथ अलोंग वाई एक्सिस कितनी लेंथ बनी? ए कॉस बीटा। यानी कि ए एक्स बना ए कॉस अल्फा, ए वाई कितना बना? ए कॉस बीटा, वेरी गुड। उसी तरह ए जेड क्या बनेगा बताना? ए टेन थीटा। नहीं 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 भाई, ये भी तो एडजेसेंट ही साइड आएगी, क्योंकि सेम देखो ना आप, सिमेट्री देखो, ए इज मेकिंग अल्फा विद एक्स एक्सिस, ए कॉस अल्फा, ए इज मेकिंग बीटा विद वाई एक्सिस, ए कॉस बीटा, तो ए इज मेकिंग, तो ये यहां क्या आना चाहिए? सिमेट्री से चलो भाई, आप इसी को जेड एक्सिस समझ लो और इसको आप समझ लो गामा, तो यहां क्या लिखूंगा मैं? ए कॉस गामा। वेरी गुड, ए कॉस गामा। कंसेप्ट समझ में आ गया?
तो ये Yes, sir. ये आपकी लेंथ आ गई ना तीनों। तो वेक्टर को कैसे लिखते हैं हम? अगर अगर दो कंपोनेंट होता तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, लेकिन अगर तीसरा भी कंपोनेंट आ गया ए जेड तो उसके लिए होता है ए जेड के कैप। ओके स्टूडेंट्स, Yes, sir. तो क्या हो गया? ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप। बहुत इजी है, समझ गए? Yes, sir. यहां से कैसे लिखा था आपने? अगर दो एक्सिस थी एक्स और वाई और ये एंगल थीटा था एक्स एक्सिस के साथ, इन टर्म्स ऑफ थीटा, ये अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में, सिर्फ इसकी टर्म्स में क्या लिखा था आपने? ए इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो अगर इन एक्स वाई प्लेन है, ये है प्लेन 2D और ये हो गया 3 डायमेंशन। ओके, यानी कि स्पेस में। अब ए किस में है? स्पेस में। यानी कि ये ए जो था, यहां पर जो एंगल ए था, ये आपकी स्क्रीन के प्लेन में था, इन द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन। अब स्क्रीन से बाहर निकल गया है, समझ गया? आपकी स्क्रीन एक्स वाई प्लेन था। ओके, तो फिर कैसे लिखोगे इसको? तो ऐसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो पेज 19 है उसका लास्ट जो है वो यहां पर खत्म हो रहा है। मिल गया आपको ये एक्सप्रेशन? तो वी आर एग्जैक्टली फॉलोइंग योर बुक, ठीक है? Yes, sir. तो ये समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है आपका यहां पर ये ए एक्स और ए वाई, तो ए आप यहां पर जो आपका ए एक्स है वो किसके इक्वल है? ए कॉस अल्फा के। और ए वाई किसके इक्वल है? A cos beta. वेरी गुड। आप इसको ए कॉस बीटा भी लिख सकते हो, और इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिखना हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो? हे साइन। A sin alpha. अब आप हर तरीके से कंसेप्ट समझे या नहीं समझे? Yes, sir. कुछ रटने की जरूरत है? No, sir. तो ये जो कॉस अल्फा बीटा गामा है, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ओके, तो ये आपने वेक्टर लिखा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो स्टूडेंट्स, Yes, sir. आप मुझे बताना यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? ए एक्स बाई ए, क्योंकि डैश को कोसाइन बताने ना मैं क्या होंगे, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? ए एक्स बाई ए। हाँ या ना? Yes, sir. कॉस बीटा की बताओ क्या क्या आएगी? Sir, AY by A. वेरी गुड। और कॉस गामा की? क्योंकि एक A ए, gamma हाँ, by तो ए गामा था, ए कॉस गामा, सॉरी ए जेड था, ए कॉस गामा, तो कॉस गामा क्या हो गया? Sir, AZ by A. वेरी गुड स्टूडेंट्स, पास हो गए तुम बिल्कुल अच्छे से। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक प्रॉपर्टी इनकी डैश और कोसाइन की प्रॉपर्टी करते हैं हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। बताना क्या मिलेगा? ऐड करो। ए एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस ए वाई बाई वाई का ए का होल स्क्वायर प्लस ए जेड बाई ए का स्क्वायर। तो क्या मिला? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, A. है ना? यही मिलेगा ना? Yes, sir. हम्म Yes, sir. हम्म तो ये मिल गया आपको इनका स्क्वायर्स का सम। और ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? ये किसके इक्वल होता है? ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ये जो ए है, ये आप समझो, ये आपका ये क्यूबॉइड था एक तरीके से। ये आपका रूम है जिस रूम में आप बैठे हो सपोज, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे ये है आपका
वेक्टर ए। आई बात समझ में? ये आपका एक तरफ का ग्राउंड फ्लोर का कॉर्नर और उसके बिल्कुल अपोजिट दूसरी तरफ का कॉर्नर, तो ये ओरिजिन था और ये आपका वेक्टर ए। कुछ बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो ये जो है, ये जो वेक्टर है, ये दिस इज नथिंग बट ये जो लेंथ है, दिस इज द, आपने मेंसुरेशन में किया होगा, लॉन्गेस्ट रॉड यू कैन कीप इन ए क्यूबॉइड और इन ए रूम, हाँ या ना? अरे Yes, sir. क्वेश्चन किया है ना, तो ये लेंथ क्या आती है आपकी? a इज इक्वल टू अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो आती है बेटा, है ना? ये लेंथ, Yes, sir. ये ब्रेड्थ और ये हाइट करके देखो, लेंथ और ब्रेड्थ, तो ये जो बेस का डायगोनल आएगा इसकी लेंथ आ जाएगी अंडर द रूट, बेस के डायगोनल की लेंथ क्या आ जाएगी? अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बेस डायगोनल आ गया और ये हाइट, तो ये अब इस ट्रायंगल को ले लो, ये 90 डिग्री हो गया, पहले ये 90 था, तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी अब ए की? दिस इज इक्वल्स टू, तो पहले आपने बेस में ट्रायंगल लिया, ये आपका रूम है, ये फ्लोर आपका, ये साइड लेंथ और ये ब्रेड्थ रूम की, तो ये क्या आ गया? अंडर द रूट डायगोनल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे आएगा नहीं आएगा? अब आपने, sir. अब ये आपका बेस हो गया और ये आपकी हाइट हो गई, और ये वो डायगोनल है अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है? तो अब बताओ मुझे ये कितना आएगा? अंडर द रूट L square plus B square plus H square. एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इसका अंडर द रूट, तो ये मान लो ए है, तो ए यही आएगा ना, और ये Yes, किसके इक्वल हो sir. जाएगा? अंडर द रूट, अब ये स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आ गई बात समझ में? तो Yes, sir. ये जो आप ए एक्स जो आप देख रहे हो, ए एक्स कुछ नहीं है, ए एक्स इज नथिंग बट योर लेंथ, ओके? ए एक्स क्या आपकी लेंथ है, बी क्या है आपका? ए वाई, और लेंथ और हाइट क्या आपकी? ए जेड। तो स्टूडेंट्स इतना आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा हम उनको घुमा रहे हैं गोल गोल, ओके? आ गई बात समझ कुछ? ये जो ए एक्स ए वाई ए जेड लिख रहे हो आप एक्चुअली, तो ये रोड जो आपने लॉन्गेस्ट रोड रखी है, ये समझ लो एक्स एक्सिस आता, आप अपने आपके रूम में जो है, ये जो ग्राउंड फ्लोर है, ये जो लेंथ है इसको एक्स एक्सिस मान लो, ये जो ब्रेड्थ है इसको वाई एक्सिस मान लो, और जो हाइट है उसको जेड एक्सिस मान लो। तो ये जो लॉन्गेस्ट रोड रखी है आपने, ये ए, ये एक्स के साथ एंगल बना रही है अल्फा, वाई के साथ एंगल बना रही है बीटा, और जेड के साथ एंगल बना रही है गामा, तो इसलिए आपकी जो लेंथ एल हो जाएगी वो हो जाएगी ए कॉस अल्फा, और बी हो जाएगा ए कॉस बीटा, और हाइट हो जाएगी ए कॉस गामा। तो स्टूडेंट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर। अरे हाँ या ना? Yes, sir. भाई ये ए है ना आपका, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? A square. अगर ये ए निकला ना आपका, तो स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा ना यहां से, तो ए किसके इक्वल होता है? अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। गॉट इट स्टूडेंट्स? Yes, sir. आई बात समझ में बेटा? तो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के, यानी कि क्या रिजल्ट निकाला? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। दिस इज जो हम पढ़ रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, फाउंडेशन बेस, जो आप फाउंडेशन कोर्स कर रहे हो हायर स्टडीज के लिए, उसका बेस है ये, ओके? अब आप इसको साइन की टर्म्स में लिखना, साइन की टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर
थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1 के। तो उसी तरीके से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। भाई आप थीटा लिखो या अल्फा लिखो एक ही तो बात है, एंगल सेम लिखना आपको। ओके तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है तो कॉस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल हो जाएगा जल्दी बताओ। Sir, 1 minus sine square beta. वेरी गुड। और कॉस गामा बेटा 1 minus sine square gamma. वेरी गुड एब्सोल्युटली बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है अब देखो इधर 1 3 बार है तो ऐड हो जाएगा है ना, या एक 1 से एक 1 काट दो आप क्योंकि प्लस है ना ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है तो बात वही है 3 माइनस 1 कर दो 1 इधर लाके, या एक 1 दोनों तरफ -1 से दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बच गया इधर आपका 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा। ओके इज इक्वल्स टू 0। अरे हाँ या ना। Yes, sir. तो इन तीनों को इधर ले जाओ लेकिन लिख इधर लो, इन तीनों को इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2। हाँ या ना। Yes, sir. तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म हो गया। आप अपनी बुक से मैच कर लो। अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन जो कि वो भी हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है इसमें भी कुछ नया नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ओके अब आप होमवर्क आपका है इलस्ट्रेशंस 15 to 20 ये अब आपको करनी है। ठीक है एंड विल डिस्कस देम टुमारो। ओके स्टूडेंट्स Okay, sir. दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू टुमारो। Thank you, Alright. sir. Yes.